leadership is exactly like that. A true leader does not lead for attention, power, or popularity. A true leader doing a few things for our school. I've been always a guy who has always believed. Greetings of the day. Today marks an important step in the Students' Council selection process. About a month ago, we began this journey by inviting interesting students to apply for various leadership positions. As part of the process, each candidate prepared and presented their manifesto, sharing their ideas, goals, and vision for the school. Over the past few weeks, we have carefully reviewed their applications and recorded presentations. Today, we move to the next stage, the interview round. This interview is an opportunity for candidates to demonstrate their leadership qualities, communication skills, sense of responsibility, confidence, and commitment to serving the school community. I would like to thank all the candidates for their enthusiasm and willingness to take on leadership roles. I encourage each of you to answer honestly, confidently, and thoughtfully. Remember, this is an opportunity to share your ideas and show us the qualities that makes you a suitable representative of the students' body. On behalf of the selection panel and the whole family of Hashanami Goodwill School Tucson, I wish all candidates the very best for the interviews. Okay, Salha, briefly introduce yourself to the panel. मेरा नाम सोलहा इकबाल है and I'm from Darul I'm currently studying in class 10th and I have applied for the post of head girl. And my hobbies are dancing and singing, and also I'm a crafter. And that's my introduction. Okay, we'll start with a very easy question. Why do you want to become the head girl? I want to become head girl because I sincerely want to serve my school and my fellow students. मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जैसा कि हमारा ये लास्ट ईयर है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने स्कूल के लिए कुछ जाते जाते अच्छा करूँ. मैं और अपने जो मेरे फेलो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक एग्जांपल बनूँ. एज अ हेड गर्ल मैं यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स प्रमोट करूँगी और बहुत स्टूडेंट्स को आगे लाना चाहती हूँ जिनमें कुछ करने की जिनमें कुछ क्रिएटिविटी है बट वो आगे नहीं आ रहे, तो मैं उन्हें भी आगे लाना चाहती हूँ. एंड yeah, that's. There are other posts as well, but you applied for the head girl. So what are the qualities that makes you suitable for the post? So I'm confident, responsible, and committed to serve my school. For me, leadership is not about title. It's about inspiring hearts and building confidence. And I want to be the voice of students. And there are so many things that I want to do for my school and also for students. And मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स की वॉइस सुनी जाए, उनके जो कंसर्न्स हैं उन्हें रिस्पेक्टफुली मैं एड्रेस करना चाहती हूँ. एंड आई ऑल्सो वांट टू प्रमोट मोर स्टूडेंट-लेड activities, teamwork, and initiative that help students build confidence and leadership skills. Salha, since you have applied for the post of head girl, so if you become the head girl of the school, there will be some students who will disagree with your decision. How will you cope with that? May I have some minutes? Ma'am, if they will disagree with my decision, so I can't force them कि वो मेरा माने. एंड अगर वो ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट करेंगे साथ, पहले बात मैं स्टूडेंट्स के साथ करूँगी कि उन्हें मेरा डिसीजन अच्छा क्यों नहीं लगा. अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे शेयर करे, बट अगर उन्हें
कुछ और है, जस्ट लाइक वो नहीं चाहते थे कि मैं बनूँ, सो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है कि वो ना माने। तो मैं सीधा ही अपने टीचर्स के पास जाऊँगी, उनके साथ डिस्कस करूँगी कि ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, एंड अगर उन्हें प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताएं, मैं सॉर्ट आउट कर सकती हूँ वो प्रॉब्लम्स। You just know leadership, which is not an easy job for you. But there must be someone who has inspired you. So, who do you think is your role model and why? तो अभी तक कोई ऐसा तो मुझे नहीं मिला जिसने मुझे इंस्पायर किया। अभी किसी ने किया तो मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में भी बहुत सारे अप डाउन्स आए हैं। तो जब मुझे किसी की ज़रूरत थी तो मेरे पास नहीं था कोई जो मुझे मोटिवेट करे, बट कुछ थे जस्ट लाइक मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, जिन्होंने मुझसे पूछा कि दैट मैं क्यों नहीं कर रही। जैसे 2024 में मैंने अपना सब कुछ बंद किया था, मैंने कोई इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, बट फिर मेरे पेरेंट्स स्पेशली प्रिंसिपल सर ने, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे अपनी लाइफ ऐसे ही रोकनी नहीं चाहिए। तो दे आर माई यू नो व्हाट, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, एंड खुद भी मैंने खुद को संभाला कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। सो मुझे लगता है कि जिसने ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया, मुझे वापस यहाँ पे लाया, वो मैं खुद हूँ। Saleha, you're in class 10, right? Yes, ma'am. So you have less than 3 months now in your board examinations. जी। So you think you will be able to balance your studies and such a big responsibility, because you know the school, the strength and everything that is in the school. It's a big school now. Yeah. So how will you be able to balance your studies and your responsibilities as a head girl? Good time management is the key to balance both responsibilities and study. I will make a study schedule that will balance my responsibilities and also my study, and I will also complete my head girl responsibility during my school hours, और इसी चीज़ से मेरी दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी और मेरी स्टडीज़ भी। Being organized help me perform well in both. Saleh, you know, it is a school where there are 1,000+ students. Yes, sir. And it is not all the time that all the students would just agree with your decision. Hmm. Sometimes they would break the rules of school. But someone among you, or I think about your friends, Yes, you sir. see your close friend breaking a rule. What would you do at that time? तो मेरे सामने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात आए तो सारे इक्वल है। अगर वो मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स हो या फिर यहाँ जूनियर हो, मेरे बाकी स्टूडेंट्स हो, उधर मेरे लिए कोई क्लोज़ नहीं है, मेरे लिए सारे इक्वल है। अगर वो रूल ब्रेक करेंगे तो मैं उन्हें वैसे ही भी उन्हें बताऊंगी, जिस तरह मैं उन लोगों को बताऊंगी कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, उन्हें भी वैसे ही करूंगी। अगर उन्होंने फिर ज़्यादा ही किया, मेरी इस पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाया, तो मैं उसी तरह स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाऊंगी, उनकी कंप्लेन करूंगी। उधर मैं इस चीज़ को नहीं देखूंगी कि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, चाहे वो फिर मुझसे नाराज़ भी हो, मैं उस चीज़ से ठीक हूँ। Saleha, you know we have a lot of new students here this Yes, year. ma'am. So अभी तक वो सामने आए नहीं है. They have not come forward as of now. So are there any plans in your mind कि उन्हें आगे कैसे लेके आना है स्टेज पे, उनका वो जो डर वर है, उनका टैलेंट बाहर कैसे ला सकती हो? Have you any plans in your mind? मैम, पहले इसके लिए हमें उन लोगों का इंटरेस्ट चाहिए। अगर वो इंटरेस्टेड है तो फिर, और रही बात अगर वो लोग नर्वस हो रहे हैं कि वो डरते हैं स्टेज पे आने से, तो उन्हें पहले मैं बहुत अच्छे से मोटिवेट करूँगी। उन्हें मैं दिखाऊँगी कि ये स्टूडेंट भी पहले से ही ऐसे नहीं थे, इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जो आज स्टेज पे आ रहे हैं, इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये भी कभी नर्वस हुए थे। तो उन लोगों को दिखा के मैं उन्हें बोलूँगी कि आप लोगों को भी करना चाहिए कभी। एक बार जब वो स्टेज पे आएंगे तो उनका वो डर तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। Saleh, we Yes, know sir. you are a good singer as well, right? यस सर। आज कुछ गाना हो जाए। तो सर मैं मिडिल से ही स्टार्ट करूं। क्या उस गली में
में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से ज़माने को गुज़रे ज़माना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ। बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। थैंक यू। Morning. Okay, Zakaria, briefly introduce yourself to the panel. My name is Mohammad Zakaria Khan. I live in Shivpura, Lolab. I read in class 10, and this is my second time I am applying for this responsibility. And my hobbies are playing football and solving puzzles. Zakaria, you are applying for the post of head boy. Yes, sir. Why do you think it is a suitable title for your suitable position? Sir, because the change I want वो सिर्फ हेड बॉय बन के ही हो सकती है। द मेन रीज़न मैं हेड बॉय के लिए उठाऊँ क्योंकि मैंने जो स्टूडेंट्स और सीनियर्स के बीच में कन्वर्सेशन देखी है, वो कुछ सीनियर जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर मतलब वो वाली रिस्पेक्ट जो डिज़र्व करते हैं स्टूडेंट्स, वो एक वे होता है बात करने का, वो वैसे नहीं कर पाते। और मुझे ये चेंज करनी है, इसलिए मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है जो हेड बॉय कर सकता है। Talking about the change in the school, if you are getting selected for the position of the head boy, yes, sir. what is the first change that you want to bring in the school? सर, फर्स्ट चेंज यही रहेगी कि मैं स्टूडेंट्स और सीनियर्स के बीच में एक गुड कन्वर्सेशन बनाऊं, जो कि मैं ज़्यादातर देखता आ रहा हूँ। ये सीनियर की है, ये कुछ रॉन्ग वे में यूज़ की जाती है। तो पहला चेंज मेरा यही रहेगा कि हर एक बच्चे को, जूनियर्स को रिस्पेक्ट से बात मिले और उसे गाइडेंस सही मिले, ना कि उसे डराया जाए। So, how will you mentor younger male students that are there in the school? I mean, we have a huge strength of boys here. So, उन्हें कैसे मोटिवेट करेंगे आप? मैम, जो यहाँ के बॉयज़ हैं उन्हें मोटिवेट करने के लिए मुझे उनके लिए कैंपेन्स करने पड़ेंगे, उन्हें काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि दैट आपके अंदर टैलेंट है आप बस। और मैंने देखा भी है मैनी स्टूडेंट्स जो यहाँ के बॉयज़ हैं उनके अंदर टैलेंट है, लेकिन उनके अंदर एक डर है कि वो आप कैमरा के आगे नहीं आ सकते हैं, वो एक क्राउड में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बस मुझे उनका वो डर निकालना है, जिसकी वजह से मैं उनके बार बार उनको आगे लाने की कोशिश करूँगा, और उनका जो फोबिया है वो 1, 2, 3 टाइम्स के बाद वो निकल जाएगा, फिर वो खुद आगे आएंगे। You know, sometimes what happens that the students indulge in a conflict. You see two students are indulged in a conflict. How will you resolve this conflict? सर, फर्स्टली मैं चेक करूँगा द कॉन्फ्लिक्ट, क्या मैं वो मेरे पास उतनी अथॉरिटी है कि मैं उस कॉन्फ्लिक्ट को खुद सॉल्व करूँ। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट कुछ मतलब मेरी अथॉरिटी से आगे होगा तो देन आई विल हैंड ओवर इट टू आवर प्रिंसिपल। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट मेरी तक होगा तो देन आई विल रिजॉल्व इट। What are the qualities that makes you a good leader? द ग्रेट लीडर, आई कैन रिप्रेजेंट माई सेल्फ इन अ क्राउड। अच्छी तरह मैं अपनी जगह हर जगह मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मेरे पास और मैं यहाँ पे यूकेजी क्लास से पढ़ता हूँ, जिसकी वजह से मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है। मैंने सारे अप्स एंड डाउन्स स्कूल के देखे हैं। और आई एम वेल डिसिप्लिन कैडेट, ऑल्सो एनसीसी कैडेट, जिसका मोटो ही हमारा है डिसिप्लिन एंड यूनिटी। तो ये वाली क्वालिटीज़ जो मेरे अंदर हैं, जो एनसीसी ने डेवलप किया और जो एक्सपीरियंस इसके साथ मेरे अंदर आई हैं, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि आई एम गुड फॉर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। Is there anyone who has inspired you for the post of head boy? सर, इंस्पायर अगर मैं देखा जाए तो मेरे अंदर ये इंस्पायरेशन, ये हेड बॉय की लीडरशिप की, ये मेरी एम की वजह से आई है। क्योंकि मैंने जितने भी ऑफिसर्स देखे हैं, उनकी लीडरशिप स्किल्स देखी है, तो उनकी जो लीडर डिसीजन मेकिंग मैंने देखी है, उनकी उसमें इंस्पायर हुआ हूँ कि मैं ये हेड बॉय के लिए आऊँ और
डिसीजंस, अच्छे डिसीजंस ले सकूं। Anyone, can you name? सर देयर आर मैनी सर, अगर मैं किसी एक का नाम लूँ तो वो मेरे एक, सॉरी सर आई फॉरगेट हर नेम, लेकिन वो एक पैरा एसएफ के एक एक्स सर्विसमैन कमांडो रह चुके हैं। वो कमांडिंग ऑफिसर थे, तो उनकी वीडियो में ज़्यादातर देखता हूँ, बट आई डोंट नो मैं इस टाइम उनका नाम चेंज भूल गया हूँ। तो उनकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं जो वो बताते थे मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, तो उनसे मैं हर इस चीज़ के लिए इंस्पायर हुआ हूँ। Zakaria, you are in class 10 right now, so you Yes, have ma'am. exams coming, okay? You have just 2-3 months left. How are you going to manage such huge responsibility as a head boy and your study load? मैम मैं सेल्फ स्टडी ज़्यादा करता हूँ। जो स्कूल की को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो मैं स्कूल में ही करूँगा, और जो बाकी मेरा घर में जो टाइम बचता है मैं वो सारा टाइम अपनी स्टडीज़ पे ही लगाता हूँ, और जो स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं वो मैं स्कूल में ही मैनेज कर लेता हूँ। तो इसी वजह से मैं सेल्फ स्टडिंग करके अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हो जाऊँगा, और जो स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं वो स्कूल में ग्रुप डिस्कशंस करके हर एक की हेल्प लेके मैं ये स्कूल की एक्टिविटीज़ कर लूँगा। So we'll be having a good team of students. You'll be having discipline captain, cultural, sports, head girl, and you. So as a team, what change are you looking like? क्या changes आप लाएंगे टेबल पे? सबसे पहली बात मैं अगर मेरे पास कोई डिसिप्लिन कैप्टन है, मेरे पास ऑब्वियसली अगर मैं हेड बॉय हुआ तो मेरे पास जो मेरी काउंसिल रहेगी, तो मैं हर एक को सबसे ज़्यादा फोकस करने पे यही कहूँगा, जो जिस चीज़ के लिए आप बने हो, जिस चीज़ के लिए आप आगे आए हो, आप चुने गए हो, तो सबसे ज़्यादा आप फोकस उन्हीं चीज़ों पे करें। फिर अगर आपको किसी जगह पे मेरी हेल्प चाहिए या मुझे कहीं पे डिसिप्लिन में या सपोर्ट्स में कहीं पे किसी चीज़ में कुछ नज़र मतलब ऊंच नीच नज़र आएगी, तो यू हैव टू, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, और शायद इसके खिलाफ एक्शंस भी लिए जाएंगे, और आप जिस चीज़ के लिए आप रेडी किए गए हो आपको फिर उस चीज़ के लिए 100% तैयार रहना है और उस चीज़ को अच्छी तरह सॉल्व करना है। अगर आप डिसिप्लिन कैप्टन हैं तो आपको डिसिप्लिन की तरफ 100% फोकस रहना है कि बच्चे स्कूल में डिसिप्लिन अच्छी तरह है। अगर आप सपोर्ट्स कैप्टन हैं तो कहीं आप किसी ऐसे प्लेयर को पीछे तो नहीं रख रहे हैं जो टैलेंटेड था लेकिन आपने फेवरेटिज्म की या कुछ की, इसीलिए मैं उनसे यही बातें करके यही कुछ आइडियाज़ दे के या उनसे कुछ आइडियाज़ जो वो मुझसे कोई फेवर उन्हें चाहिए होगा जो एज ए हेड बॉय मैं कर पाऊँगा, तो मुझसे लेंगे, ऐसे ही हम एक टीम वर्क कर लेंगे। Me to serve my school, represent myself as well as the students of the school. उनको भी मतलब फुल मतलब अपना टाइम फुल दूंगा, और जो मेरी मतलब स्टडीज़ है उन पर भी अपना फुल टाइम दूंगा, क्योंकि जब मैं घर जाता हूँ यहाँ से School, because I believe, as I told already in episode 2, why I want to become the head boy. And after that, I think here every student is very talented and confident that they can do some